میں آج بھی اس دن کو یاد کرتی ہوں تو دل کانپ اٹھتا ہے۔ میرا ننھا سا بیٹا جو ابھی صرف 2 دن کا تھا، زندگی اور موت کے درمیان جھول رہا تھا۔ ڈاکٹر نے جب مجھے بتایا کہ وہ عام دودھ ہضم نہیں کر پا رہا اور اسے فوری ماں کی دودھ کی ضرورت ہے، تو جیسے میری سانسیں رک سی گئی۔ میں ڈاکٹر کے سامنے کھڑی تھی مگر میرے الفاظ ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ بس ایک ہی بات میرے ذہن میں گونج رہی تھی کہ اگر میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ میں نے بے بسی سے ڈاکٹر سے پوچھا کہ میں یہ سب کیسے کروں، کہاں سے لاؤں کسی ماں کو جو میرے بچے کو دودھ پلا سکے۔ میری آنکھوں میں خوف اور امید دونوں ایک ساتھ تھے۔ ڈاکٹر نے نرم لہجے میں کہا کہ اگر کسی جاننے والی کے ہاں چھوٹا بچہ ہو تو وہ مدد کر سکتی ہے۔ اس لمحے مجھے اپنی کمزوری شدت سے محسوس ہوئی، جیسے دنیا میں کوئی سہارا باقی نہ آیا ہو۔ اسی پریشانی میں اچانک امی کو کچھ یاد آیا۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ وہ یہ کیسی عورت کو جانتے ہیں جو شاید ہماری مدد کر سکیں۔ فوراً ڈرائیور کو بھیجا گیا۔ ہر گزرتا لمحہ میرے لیے صدیوں جیسا تھا۔ میں بس اپنے بیٹے کے پاس بیٹھی اسے دیکھتی رہی، اس کی ننھی سانسوں کو گنتی رہی اور دل ہی دل میں دعا کرتی رہی۔ دوسری طرف وہ لڑکی جسے ہم بلوا رہے تھے خود بھی ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بیٹھی تھی۔ 2 دن پہلے ہی اس نے اپنے بچے کو کھو دیا تھا اور اب اس کی گود خالی تھی۔ جب اسے اچانک ہاسپٹل بلایا گیا تو وہ پہلے تو جاننے کو تیار نہ تھی، مگر اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ شاید کسی کی زندگی اس کی ایک قدم سے بچ سکتی ہے۔ آخرکار وہ ہمارے ساتھ آنے پر راضی ہو گئی۔ جب وہ میرے سامنے آئی تو میں نے اس کی آنکھوں میں اپنا ہی دکھ دیکھا۔ وہ خاموشی سے میرے بچے کے قریب بیٹھی اور اسے گود میں لے لیا۔ اس لمحے جیسے 2 ٹوٹے ہوئے دل ایک دوسرے کا سہارا بن گئے۔ اس نے میرے بیٹے کو دودھ پلانا شروع کیا اور میں پہلی بار سکون سے رو سکی۔ وقت کے ساتھ میرا بچہ سنبھلنے لگا اور میں ہر روز اس لڑکی کے لیے دل سے دعا کرتی رہی۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ کبھی کبھی اجنبی لوگ بھی ہماری زندگی میں فرشتوں کی طرح آتے ہیں، اور شاید کچھ رشتے خون سے نہیں بلکہ درد بانٹتے سے بن جاتے ہیں۔ مجھے آج بھی وہ لمحہ یاد ہے جب امی نے اچانک میرے کندھے پر کالی چادر ڈال دی اور کہا کہ ہمیں فوراً ہاسپٹل جانا ہے۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی، مگر انہوں نے میرے چہرے پر ابھرتے سوالوں اور دل میں چھپے درد کو نظر انداز کر دیا۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میرا دل ابھی تک اپنے کھوئے ہوئے بچے کے غم میں ڈوبا ہوا تھا اور آنکھوں میں وہی خالی پن بسیرا کیے ہوئے تھا۔ گاڑی تیزی سے ہاسپٹل کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر مجھے لگ رہا تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی ایک عمر رسیدہ خاتون نے مجھے دیکھا اور فوراً میری طرف بڑھ آئی۔ ان کے چہرے پر بے پناہ امید تھی، جیسے میں نہیں بلکہ کوئی معجزہ ان کے سامنے آ کھڑا ہوا ہوں۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بڑے پیار سے مجھے ڈاکٹر کے کمرے کی طرف لے گئی۔ میں اب بھی سب کچھ سمجھے بغیر ان کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ جب ہم ڈاکٹر کے سامنے پہنچے تو انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور کچھ سوال کیے۔ تب مجھے حقیقت کا اندازہ ہوا۔ ان کے الفاظ سن کر میرے دل میں جیسے ایک نیا طوفان اٹھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں ان کے ننھے سے پوتے کو دودھ پلاؤں جو زندگی اور موت کے درمیان لڑ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں ساکت رہ گئی۔ 2 دن پہلے ہی میں نے اپنے بچے کو کھویا تھا اور اب قسمت مجھے ایک اور امتحان کے سامنے لا کھڑا کر رہی تھی۔ میں نے سامنے کھڑی اس دکھی ماں کی آنکھوں میں دیکھا جن میں التجا صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور وہ منظر میرے دل کو چیر گیا۔ مجھے وہ دن یاد آ گئی جب ہم خود بے سہارا سڑکوں پر تھے اور انہی لوگوں نے ہمیں پناہ دی تھی۔ اس احسان کے آگے میرا اپنا دکھ چھوٹا لگنے لگا۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہا، میں یہ کام خوشی سے کروں گی، بس آپ اس بچے کو بچا لیجئے۔ میرے اپنے الفاظ سن کر میری آواز بھیگ گئی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا سکون بھی اترنے لگا۔ نرس مجھے یہ کمرے میں لے گئی اور تفصیل سے سب کچھ سمجھایا۔ جب میں نے اس ننھے بچے کو پہلی بار اپنی گود میں لیا
तो मेरे हाथ कांप रहे थे। इसकी सांसें बहुत मध्यम थी, मगर इसके चेहरे पर एक मासूम सी रोशनी थी। मैंने आंखें बंद करके बिस्मिल्लाह पढ़ी और इसे अपने सीने से लगा लिया। वो लम्हा मेरे लिए नाकाबिले बयान था। ऐसा लगा जैसा मेरा खोया हुआ बच्चा एक बार फिर मेरी आगोश में लौट आया हो। इस नन्हे वजूद ने जैसे ही मुझे महसूस किया, वो बेइख्तियार मेरे करीब से मुड़ गया। इसकी नरम सांसों ने मेरे दिल के जख्मों पर मरहम रख दिया। शायद जिंदगी कभी एक दरवाजा बंद करती है तो दूसरा खोल भी देती है, और उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मेरा दर्द ही किसी और की जिंदगी बन गया है। मैं उस लम्हे को कभी नहीं भूल सकती जब पहली बार उस नन्हे बच्चे ने मेरा दूध कबूल किया। मेरी गोद में लेटा हुआ वो कमजोर सा वजूद आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा था, और जैसे ही इसने हिम्मत करके मेरे वजूद से जुड़ना शुरू किया, मुझे यूं लगा जैसे मेरे अंदर से बहता हर खतरा सिर्फ दूध नहीं बल्कि जिंदगी बनकर इसमें उतर रहा हो। नर्स ने मुस्कुराकर कहा, शुक्र है बच्चे ने इनकार नहीं किया। हर बच्चा इतनी आसानी से मान भी नहीं जाता। आप वाकई खुश नसीब हैं। आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आई, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि मैं खुद अंदर से कितनी टूटी हुई हूँ। इधर कमरे के बाहर वो सब लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही खबर मिली कि बच्चा दूध पी रहा है, एक हल्की सी उम्मीद की लहर सबके चेहरों पर आ गई। वो औरत जो इस बच्चे की दादी थी, फौरन आगे बढ़ी और अपने बेटे को थाम लिया। वो बार बार पूछ रहा था, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा ना? इसे कुछ नहीं होगा ना? इसकी आवाज में खौफ साफ सुनाई दे रहा था। दादी ने इसे सीने से लगाकर तसल्ली दी, मगर इसके अपने हाथ भी कांप रहे थे। बाद में मुझे पता चला कि यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सदमा छुपा हुआ था। सिर्फ एक हफ्ता पहले तक यह घर खुशियों से भरा हुआ था। आने वाले बच्चे की खुशी में तकरीबें हो रही थी, हंसी गूंज रही थी और हर तरफ उम्मीद थी। मगर फिर एक लम्हे में सब बदल गया। बच्चे की माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक बढ़ गया और डॉक्टरों को फौरी ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन तो हो गया, बच्चा भी दुनिया में आ गया, मगर खुशी अधूरी रह गई। वो माँ जिसने इसे जन्म दिया था खुद जिंदगी की जंग हारने लगी थी। मैंने उस बाप को कई बार देखा। वो शीशे के उस पार खड़ा अपनी बीवी को देखता रहता था, जो मशीनों के सहारे सांस ले रही थी। इसकी आंखों में खौफ था, खोने का, बिछड़ने का। एक दिन वो टूटकर अपनी माँ के सामने रो पड़ा। कह रहा था, अगर वो मुझे छोड़ गई तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? मैं तो इसके बगैर कुछ भी नहीं। इसकी आवाज में ऐसी बेबसी थी कि सुनने वाला भी अंदर से हिल जाए। मैं ये सब देखती रही और मेरे दिल में अजीब सी कैफियत पैदा होती रही। एक तरफ मैं अपना खोया हुआ बच्चा याद करके टूट जाती और दूसरी तरफ इस नन्ही सी जान को अपनी बाहों में लेकर जीने की एक नई वजह महसूस करती। शायद यही जिंदगी का अजीब इंसाफ है। किसी का बिछड़ना किसी और के जीने का सहारा बन जाता है, और हम चाहकर भी इस फैसले को बदल नहीं सकते। मैं आज भी उस रात को याद करती हूँ तो दिल जैसे दोबारा टूटने लगता है। वो आदमी बार बार कह रहा था कि अगर इसकी बीवी को कुछ हो गया तो वो भी जिंदा नहीं रहेगा, मगर किस्मत ने उसकी एक ना सुनी। कई घंटों की कोशिशों के बावजूद डॉक्टर इसे बचा ना सके और वो जवान औरत अपने बच्चे को जन्म देकर हमेशा के लिए चली गई। पूरा घर मातम में डूब गया। हर तरफ आई और सुसुकियां थी, मगर शायद आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। इसे शाम खबर मिली कि वह नन्हा सा बच्चा भी खतरे में है और इसे फौरी निगहदाश्त में मुंतकिल करना पड़ेगा। फिर डॉक्टर ने साफ अल्फाज में कह दिया कि अगर इसे माँ का दूध ना मिला तो इसकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। मैं खामोशी से ये सब सुन रही थी और दिल में एक अजीब सा बोझ महसूस कर रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं किसी के लिए उम्मीद बनने वाली हूँ या फिर एक और इम्तिहान का हिस्सा। जब मैंने इसे अपनी गोद में लिया और इसे दूध पिलाना शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा अपना खालीपन आहिस्ता आहिस्ता भर रहा हो। वो बच्चा हर 2 घंटे बाद मेरे वजूद से जुड़ता और मैं अपनी भूख, अपनी थकन, सब कुछ भूल जाती। हाँ, जिस्म कमज़ोर था
भूख शिद्दत से लगती थी, मगर जब वो नन्ही जान सुकून से सो जाती तो मुझे लगता जैसे मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा काम कर लिया हो। डॉक्टर ने भी ताकीद की कि अगर मैं खुद मजबूत रहूंगी तो ही वो बच्चा मजबूत होगा, इसलिए मेरे लिए अच्छा खाना, आराम सब जरूरी था। वो सब लोग मेरा ख्याल रखने लगे जैसे मैं कोई अजनबी नहीं बल्कि इसी घर का हिस्सा हूँ। एक हफ्ता यूं ही गुजर गया और फिर वो दिन आया जब डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई कि बच्चा अब खतरे से बाहर है और इसे घर ले जाया जा सकता है। मैं एक तरफ खड़ी ये सब देख रही थी। वो बाप अपने बेटे को हाथों में लिए खुशी से रो रहा था और मैंने पहली बार इसके चेहरे पर सुकून देखा। मैंने अपना चेहरा चादर में छुपा रखा था जैसे हमेशा रखती थी। मेरा काम शायद खत्म हो चुका था और मैं खामोशी से वापस अपनी दुनिया में लौट जाना चाहती थी, मगर अचानक इसकी माँ ने हमें आवाज़ दी, आ जाओ अब घर चलते हैं। मैं चौंक गई। ये पहली बार था जब किसी ने मुझे इस तरह अपने साथ चलने को कहा था। वो आदमी पलटा और हमें देखकर इसके चेहरे पर नागवारी सी आई। शायद वो नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ या क्यों यहाँ हूँ, मगर फिर इसकी माँ ने आहिस्ता से इसके कान में कुछ कहा और इसके चेहरे के तासरात बदलने लगे। शायद इसे उस लम्हे एहसास हुआ कि इसके बेटे की सांसों के पीछे किसी और का भी हिस्सा है। और मैंने पहली बार ये महसूस किया कि कभी कभी खामोश रहकर किया गया एहसान सबसे ज्यादा गहरा होता है। मैं उस दिन कमरे के ये कोने में खड़ी थी, अपने वजूद को खाली चादर में छुपाए, जैसे हमेशा खुद को दुनिया से छुपाती आई हूँ। जब वो आदमी बालाज अपने बेटे को गोद में लिए मेरी तरफ देख रहा था तो उसकी आंखों में हैरत साफ झलक रही थी। शायद उसे पहली बार बताया गया था कि मैं वही लड़की हूँ जो इसके बच्चे को जिंदगी दे रही थी। मैंने नजरें झुका ली क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं था। वक्त गुजरता गया और मेरा मामूल बस एक ही रह गया, हर 2 घंटे बाद उस बच्चे को दूध पिलाना, दिन हो या रात, नींद हो या थकन। मैंने कभी इनकार नहीं किया, मगर ये सब हमेशा ऐसे नहीं चल सकता था। बच्चा रातों को जागता और दिन में सोता और सबकी जिंदगी एक अजीब सी बेतरतीबी में बदल गई थी। बेजान अक्सर गहरी सोच में डूबी रहती थी, जैसे किसी बड़े फैसले का बोझ उनके दिल पर हो। एक दिन उन्होंने बिलाज से बात की। मैं दरवाजे के पीछे खड़े सब सुन रहे थे। उनकी आवाज में इल्तिजा थी, बेटा इस बच्चे से निकाह कर लो, सिर्फ इस नन्ही जान के लिए। ये इसे संभाल लेगी, इसकी माँ बन जाएगी और तुम्हारा बच्चा हमेशा महफूज रहेगा। यह सुनकर मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। बिलाज का रद्द अमल भी सख्त था। वो गुस्से में कह रहा था कि वो अपनी मरहूम बीवी के इतने जल्द बाद किसी से निकाह नहीं कर सकता और ना ही वो मुझ पर कोई एहसान मानता है। उसके अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह लग रहे थे, मगर मैं खामोश रही क्योंकि शायद वो गलत भी नहीं था। मगर बीजान ने हार नहीं मानी। उन्होंने उसे याद दिलाया कि कुछ रिश्ते इंसान नहीं बनाते बल्कि हालात और खुदा खुद बना देते हैं। उनकी आंखों में अपने पोते के लिए खौफ था और वो खौफ किसी भी दलील से बड़ा था। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। मैं बच्चे को दूध पिलाते पिलाते वही सो गई थी। थकन इतनी थी कि होश ही न रहा। जब आंख खुली तो मुझे एहसास हुआ कि मैं एक ऐसे मुकाम पर आ खड़ी हुई हूँ जहां से वापसी आसान नहीं थी। बिलाज की नजरें बदल चुकी थी और मेरे लिए ये सब एक नई उलझन बन गया था। कुछ ही दिनों बाद हालात के दबाव और बच्चे की खातिर हमारा निकाह हो गया। न ये मेरी ख्वाहिश थी न उसकी, मगर शायद किस्मत का फैसला कुछ और था। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ जाता है कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रिश्तों में बांध देती है जिन्हें हम समझ नहीं पाते, मगर वही रिश्ते वक्त के साथ हमारी पहचान बन जाते हैं। मैं उस दिन अपनी अम्मी के सामने बैठी थी और दिल में छुपी हुई सारी बातें जैसे खुद ब खुद लबों पर आ रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, अम्मी वो मालकिन का बेटा मुझे अजीब नजरों से देखता है, जैसे मैं कोई गुनाह हूँ। शायद उसे ये पसंद नहीं कि मैं उसके बच्चे को दूध पिलाऊं। मेरी आवाज में दुख भी था और थकन भी, क्योंकि मैं खुद को हर नजर में कटघरे में खड़ा महसूस करने लगी थी। अम्मी मुझे गौर से सुन रही थी।
मगर उनकी आंखों में फिक्र किसी और बात की थी। वो बार बार यही सोच रही थी कि अगर हम यहाँ से चले गए तो उस नन्हे बच्चे का क्या होगा। मैं खामोश हो गई, मगर दिल के अंदर तूफान थम नहीं रहा था। इधर बलाज ने शायद सब कुछ सुन लिया था। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बस इतना कहकर चला गया, आप लोगों को जो ठीक लगे मुझे मंजूर है। उसके लहजे में थकन थी या मजबूरी, मैं समझ ना सकी। मैं कमजोरी और बुखार में बिस्तर पर पड़ी थी। जब अम्मी मेरे पास आई, उन्होंने मेरा माथा चूमा और खुशी से भरी हुई आवाज में बोली, उठ मेरी बेटी, तेरे नसीब जाग गए हैं। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। मुझे लगा शायद वो मेरा दुख भुलाने के लिए ऐसी बातें कर रही हैं। मैं तलखी से हंस दी। अम्मी, मेरी जैसी बदकिस्मत की किस्मत कहाँ बदलती है। मैं तो आपकी जिंदगी का वो सियाह बाब हूँ जिसे आप मिटा भी नहीं सकती। मेरे अल्फाज सख्त थे, मगर वो मेरे अंदर के जख्मों की आवाज़ थे। अम्मी ने फौरन मुझे टोका, ऐसा मत कहें, अल्लाह सब्र करने वालों को खाली नहीं लौटाता। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो बात बताने लगी जिसने मेरी सांसें रोक दी। बेगम साहिबा चाहती हैं कि तेरा निकाह बाला साहब से हो जाए, सिर्फ अपने पोते के लिए, क्योंकि तूने उसे माँ की तरह दी है। वो कहती हैं अब तू उसकी रज़ाई माँ बन चुकी है और वो तुझे इसकी असल माँ बनाना चाहती है। मैं साकित रह गई। मुझे लगा जैसे मैंने कुछ गलत सुन लिया हो। मेरी आंखों के सामने वही चेहरा घूम रहा था, बलाज का, जो हमेशा मुझे हकारत से देखता था और अब वही मेरा शौहर बनेगा। अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इनकार मत करना बेटी, वो हमें इज्जत दे रहे हैं, हमें अपना बना रहे हैं। उनकी आवाज में इल्तिजा थी, जैसे वो मेरे लिए एक महफूज रास्ता देख रहे हो। मैंने बेबसी से उनकी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से कहा, अम्मी, क्या आपने उन्हें सच बताया है, वो सब जो हमने छुपाया है? क्या हम एक झूठ पर यह रिश्ता कायम कर सकते हैं? मेरी आवाज कांप रही थी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर सच सामने आ गया तो सब कुछ टूट जाएगा। मैं उलझन में डूबी बैठी रही। एक तरफ एहसान, दूसरी तरफ सच, एक तरफ नया रिश्ता, दूसरी तरफ मेरा माजी। और उस लम्हे मुझे महसूस हुआ, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां हर रास्ता सही भी लगता है और गलत भी। मैं उस रात अम्मी की बातें सुन रही थी और मेरा दिल जैसे ही किसी अंधे कुएं में डूबता जा रहा था। अम्मी बार बार कह रही थी, बेटी, अगर कभी सच सामने आ गया तो हमें इस घर से निकाल दिया जाएगा, मगर सोच, इसमें तेरा क्या कसूर है? जब हिफाजत करने वाले ही दरिंदा बन जाए तो हम जैसी बेसहारा औरतें कहाँ जाए? उनकी आवाज में बरसों का दुख छुपा था। मैं खामोश बैठी रही, क्योंकि मेरे पास न कोई दलील थी, न हिम्मत। शायद अम्मी की खुशी इसी में थी कि मैं ये रिश्ता कबूल कर लूं। मैं खुद को देखती तो हैरान रह जाती। कहाँ वो लोग जिनकी जिंदगी चमकते आसमान जैसी थी, और कहाँ मैं, एक नौकरानी की बेटी जिसके हिस्से में हमेशा अंधेरे ही आए। मगर फिर मेरी नज़र उस नन्हे बच्चे पर पड़ी जिसे मैं अपनी गोद में लेकर सीने से लगाती थी तो दिल नरम पड़ जाता। वो बच्चा अरीश, जिसका नाम उसके बाप और उसकी माँ ने पहले ही सोच रखा था। मैंने उसे अपनी आगोश में परवान चढ़ते देखा था। रातों को जब वो रोता तो मैं बेख्तियार जाग जाती, उसे सीने से लगा लेती, यहाँ तक कि वो सुकून से सो ना जाए। शायद इसीलिए वो मुझसे मानूस हो गया था और मैं भी उससे बालाज के लिए ये सब आसान नहीं था। ये मैं उसके चेहरे से पढ़ सकती थी। उसकी आंखों में अब भी अपनी मरहूम बीवी का अक्स था और शायद वो खुद को मुजरिम समझ रहा था। निकाह से पहले उसने साफ कह दिया था कि ये रिश्ता सिर्फ बच्चे की खातिर होगा, बस एक जिम्मेदारी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने भी सर झुकाकर ये शर्त कबूल कर ली, क्योंकि मेरे पास इनकार की कोई वजह नहीं थी। निकाह का दिन आया तो मैं हल्के गुलाबी जोड़े में बैठी थी, सर झुका हुआ, दिल बोझल। मेरे बराबर वो बैठा था, मगर हमारे दरमियान ये खामोश दीवार थी। उसने बिना कुछ कहे निकाहनामे पर दस्तखत किए और फौरन वहां से उठकर चला गया, जैसे ये सब उसके लिए एक रस्म हो, जैसे वो जल्दी खत्म करना चाहता हो। मैं वहीं बैठी रह गई। बेजान मेरे पास आई, मेरे माथे को चूमा और कहा, मेरी बच्ची, तूने बहुत सब्र किया है,
اب तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। उनकी बातों में अपनायत थी, मगर मेरे दिल में यह खालीपन अब भी बाकी था। मैंने आहिस्ता से अपनी आंखें बंद की और दिल में एक सवाल उठा, क्या हर रिश्ता सिर्फ मजबूरी से शुरू होकर हमेशा मजबूरी ही रहता है, या फिर कभी वक्त इसे सच में अपना बना देता है। मैं उस लम्हे को कभी नहीं भूल सकती थी जब बीजन मेरे सामने खड़ी मुझे दुआएं दे रही थी। उनकी आवाज में शुक्रगुजारी थी। मेरी बच्ची, तूने मेरे पोते को नई जिंदगी दी है, अल्लाह तुझे इसका अजर दे। उनके अल्फाज सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने धीमी आवाज में जवाब दिया, आपने भी तो हम पर एहसान किया है। अगर आप हमें सहारा न देती तो शायद हम दोनों माँ बेटी कहीं खुद को खत्म कर चुके होते। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम दर बदर होकर इस घर तक पहुंचे थे। अम्मी की आंखों में खौफ था और मेरे दिल में सिर्फ अंधेरा। मगर बीजान ने हमें ठुकरा दिया, बल्कि अपने घर में जगह दी, इज्जत दी। आज वही एहसान एक नए रिश्ते की सूरत में मेरे सामने खड़ा था। अम्मी बीजान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। उनकी आवाज भर आ गई थी, आपने मेरी बेटी को अपनी बहू बनाकर इसे एक नई जिंदगी दी है। अब अगर मैं मर भी जाऊं तो सुकून होगा कि ये महफूज हाथों में है। बीजान ने मुस्कुराकर उनका हाथ थाम लिया और कहा, ये सब अल्लाह के फैसले हैं। मुझे तो बस अपने पोते के लिए एक माँ मिल गई है। मैंने नीचे देखा तो नन्हा आरिश मेरी गोद में मुस्कुरा रहा था। उसके नन्हे नन्हे हाथ मेरे चेहरे को छू रहे थे, जैसे वो अपनी जबान में मेरा शुक्रिया अदा कर रहा हो। उस लम्हे मेरा दिल पहली बार हल्का हुआ, जैसे मेरे अंदर का खालीपन किसी हद तक भर गया हो। रात को मैं उसे सीने से लगाए बैठी थी कि दरवाजा खुला और बिलाज अंदर आया। उसकी मौजूदगी से मैं एकदम सिमट गई। मैंने हमेशा उसकी नजरों में अपने लिए सर्द मेरी ही देखी थी, और आज भी दिल में एक अनजाना सा खौफ था कि कहीं वो मुझे इस कमरे से निकाल ना दे। वो मेरे करीब आया और बगैर किसी तहमीक के बोला, इससे पहले कि तुम किसी गलतफहमी में रहो, एक बात साफ कर दो, ये निकाह सिर्फ मेरे बच्चे की खातिर हुआ है। अपनी हद में रहना और कभी बच्चे के मामले में मुझे शिकायत का मौका ना देना, वरना अच्छा नहीं होगा। इसके अल्फाज मेरे दिल में उतरते चले गए। मैंने सर झुका लिया और कुछ न कहा, क्योंकि शायद यही हकीकत थी। ये रिश्ता मोहब्बत से नहीं मजबूरी से बना था। मैंने अरीश को और मजबूती से अपने सीने से लगा लिया और दिल में खुद से वादा किया, चाहे ये रिश्ता कैसा भी हो, मैं इस बच्चे के लिए कभी कमजोर नहीं पड़ूंगी। क्योंकि कभी कभी इंसान अपने लिए नहीं, किसी और की सांसों के लिए जीना सीख लेता है। मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकती। वो मेरी जिंदगी की सबसे अजीब और भारी रात थी। उसने सर्द लहजे में कहा था, बच्चे का ख्याल रखना, अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, 24 घंटे। उसके अल्फाज सुनकर मैंने ये गहरी सांस ली, जैसे उसने मुझे मेरी हकीकत याद दिलाई हो कि मैं पहले भी एक नौकरानी की बेटी थी और शायद आज भी बस एक जिम्मेदारी ही हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने सर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, आपको मुझसे कभी शिकायत नहीं होगी। और बस अपनी नजरें उस नन्हे अरीश पर जमा दी जो मेरी गोद में सुकून से सो रहा था। मैंने प्यार से उसके माथे को चूमा और उसे बिस्तर पर लेटा दिया, फिर खुद नीचे जमीन पर अपना बिस्तर लगा लिया। शायद यही मेरा मुकाम था, या कम अज कम मैंने खुद को यही समझ लिया था। वो बाथरूम से निकला तो एक लम्हे के लिए रुका, जैसे हैरान हुआ हो कि मैं नीचे सो रही हूँ, मगर फिर खामोशी से बिस्तर पर जाकर लेट गया, जैसे उसे उस बात से कोई फर्क ना पड़ता हो। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, एक ऐसा सुकूत जो दिल पर बोझ बन रहा था। आधी रात को अचानक अरीश रोने लगा। मैं फौरन जाग गई, जैसे मेरी नींद हमेशा उसकी सांसों से बंधी हो। मैंने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। वो भूखा था। मैंने हल्के से उसे तसल्ली दी और उसे दूध पिलाने लगी। उस लम्हे मुझे अपनी कमजोरी शिद्दत से महसूस हो रही थी। जिस्म भी थका हुआ था और दिल भी, मगर उसकी जरूरत के आगे सब कुछ भूल गई। मुझे एहसास था कि वो भी जाग रहा है, मगर मैंने पीठ मोड़ ली। ना जाने क्यों एक अजीब सी झिझक थी। हालांकि अब वो मेरा शौहर था, मगर हमारे दरमियान कोई अपनापन नहीं था। यह हमारी शादी की पहली रात थी।
मगर इसमें ना कोई खुशी थी ना कोई ख्वाब, बस एक खामोश समझौता था। कभी कभी मैं महसूस करती कि जब वो मुझे देखता है तो इसकी आंखों में कोई और अक्स उभर आता है, शायद उसकी खोई हुई मोहब्बत का, और मैं समझ ही जाती थी कि मैं सिर्फ एक खला को पुर करने आई हूँ, उसकी जगह लेने नहीं। मैंने अरीश को अपने सीने से लगाकर आंखें बंद कर ली और दिल में बस यही सोचा, कुछ रिश्ते दिल से नहीं, वक्त की जरूरत से बनते हैं, मगर शायद वक्त ही इन्हें कभी दिल तक पहुंचा देता है। मैं अक्सर उसे देखती तो महसूस करती कि वो कहीं और खो जाता है, जैसे उसकी आंखों के सामने कोई और मंजर चल रहा हो। शायद अगर वो जिंदा होती तो आज अपने बेटे को इसी तरह सीने से लगाए बैठी होती। यही सोच उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द ले आती थी। वो एक मजबूत आदमी था, दुनिया के बड़े बड़े सदमे बर्दाश्त करने वाला, मगर अपनी बीवी की याद आते ही उसकी आंखें भीग जाती। कभी कभी वो वाकई एक बच्चे की तरह टूट जाता था और मैं ये सब खामोशी से देखती रहती। इधर अरीश दिन ब दिन समझ रहा था, मगर मैं खुद अंदर से कमजोर होती जा रही थी, जिस्म में ताकत बाकी नहीं रही थी। मगर मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, बस अपनी भूख को भी नजरअंदाज कर देती, जैसे वो भी मेरे दुख का हिस्सा हो। एक दिन बीजान ने मुझे गौर से देखा और पास बिठा लिया। बेटी, क्या बात है, तुम ठीक से खाते क्यों नहीं? डॉक्टर ने कहा था ना, तुम जितना अच्छा खाओगी बच्चे पर इतना ही असर होगा। उनकी आवाज में माँ जैसी फिक्र थी। मैंने नजरें झुका ली, हाथों की लकीरों को घूरते हुए आहिस्ता से कहा, खा लेती हूँ, बस भूख नहीं लगती। ये सच भी था और शायद झूठ भी, क्योंकि दिल भरा हो तो पेट कभी नहीं मांगता। बीजान ने मेरे कपड़ों पर नजर डाली, वही पुराने सादा कपड़े जो मैं निकाह से पहले पहन कर आई थी। एक महीना गुजर चुका था, मगर मैंने अपने लिए कुछ नया नहीं लिया था। मैंने अपनी जरूरतों को कहीं पीछे छोड़ दिया था। अब मेरी दुनिया सिर्फ अरीश तक महदूद हो गई थी। इसी शाम ही बीजान ने बिलास से बात की। मैं दूर खड़े सब सुन रही थी। वो कह रही थी, बेटा, तुमने मेरी बात मानकर निकाह तो कर लिया, मगर अब उस लड़की का ख्याल भी रखो। उसके पास पहनने को कपड़े तक नहीं है, वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। बिलाज का लहजा बेपरवाह था। तो कपड़े ले आए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। ये सुनकर मेरे दिल में एक चुभन सी हुई, मगर बीजान ने फौरन इसे रोका। ऐसा मत कहो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो तुम्हारे बेटे को पाल रही है, अपना खून इसके जिस्म में डाल रही है। तुम इसकी मोहब्बत की पाबंद नहीं हो, ना मैं तुमसे यह कह रही हूँ, मगर उसकी जरूरतों का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। मोहब्बत तो वक्त के साथ खुद दिल में उतरती है। जब अल्लाह चाहेगा। मैं खामोशी में ये सब सुनती रही। मेरे लिए ये अल्फाज किसी फैसले जैसे थे। मैं जान गई थी कि मैं यहाँ सिर्फ एक जिम्मेदारी हूँ, एक जरूरत, मगर फिर भी दिल के किसी कोने में एक हल्की सी उम्मीद जाग उठी थी। शायद वाकई कुछ रिश्ते पहले फर्ज बनकर आते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल का हिस्सा बन जाते हैं। मैं उस दिन आदेश को गोद में लेकर बैठी थी। उसके इर्द गिर्द खिलौने बिखरे हुए थे और मैं खुद अपनी सोचों में गुम थी। अचानक दरवाजा खुला और वो अंदर आ गया। मैं एक लम्हे के लिए चौंक गई और जल्दी से अपनी चादर को संभाल कर खुद पर अच्छी तरह ओढ़ लिया। ना जाने क्यों उसके सामने आते ही दिल में एक अजीब सा खौफ भर जाता था। वो मुझे कुछ देर तक देखता रहा, फिर सख्त लहजे में बोला, चलो मेरे साथ बाजार चलना है। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा, मगर उसकी नजरों में अब भी वही सर्द मेरी थी। शायद वो खुद भी इस फैसले से खुश नहीं था। कुछ लम्हे बाद वो बाहर चला गया और फिर जब वापस आया तो मेरे सामने कुछ पैसे रखकर बोला, ये लो, जाकर अपने लिए कपड़े खरीद लो, मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। मैंने उन पैसों की तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। मेरे हाथ खुद ब खुद पीछे हट गए। ना जाने क्यों दिल ने गवारा नहीं किया कि मैं इस तरह पैसे ले लूं। मैं खामोशी से उठी और कमरे से बाहर आ गई। उसकी नाराजगी मुझे पीछे से महसूस हो रही थी, मगर मैं रुक ना सकी। सच ये था कि हम दोनों के दरमियान अल्फाज कम और खामोशियां ज्यादा थी, मगर एक बात वो भी जानता था कि मैं उसके बेटे का ख्याल दिल से रखती हूँ। अरीश मेरी गोद में हमेशा साफ सुथरा, मुतमईन और मुस्कुराता रहता था।
वो दिन ब दिन तेजी से सेहतमंद हो रहा था और यही मेरी सबसे बड़ी तसल्ली थी। अगले दिन भी जान मेरे पास आई। उन्होंने अलमारी खोली और कहने लगी, बेटी यहाँ इतने सारे कपड़े रखे हैं, तुम क्यों नहीं पहनती? ये सब पड़े पड़े खराब हो जाएंगे। मैंने फौरन इनकार में सर हिला दिया। ये तो शानसे बीबी की हैं, मैं कैसे पहन सकती हूँ? बीजान कुछ लम्हे खामोश रही, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ वो उसी के हैं, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं रही। अच्छा है कि उसकी चीजें किसी के काम आ जाए तो तुम पहन लो, शायद इन्हीं को देखकर बिलाज के दिल में तुम्हारे लिए कोई नरमी आ जाए। मैंने उनकी बात सुनी तो दिल अजीब सी कैफियत में डूब गया। किसी और की जगह लेना आसान नहीं होता और ना ही मैं कभी उसकी जगह लेना चाहती थी। मैं बस खामोशी से खड़ी रही, ना हाँ कह सकी ना इनकार। इस दिन मुझे शिद्दत से एहसास हुआ, मैं इस घर में मौजूद तो हूँ मगर अभी तक किसी की नहीं हूँ। शायद वक्त ही फैसला करेगा कि मेरा मुकाम क्या है, या फिर मैं हमेशा एक अधूरी कहानी ही रहूंगी। मैं उस दिन बीजान की बातें खामोशी से सुन रही थी। वो बार बार मुझे समझा रही थी, बेटी मेरे बेटे की जिंदगी में जगह बनाने की कोशिश करो, वो अंदर से टूट चुका है, इसे एक सहारे की जरूरत है। मैं सर झुकाए बैठी रही, क्योंकि मेरे लिए ये सब आसान नहीं था। मैं किसी की जगह लेना नहीं चाहती थी, ना ही मेरे दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश थी, मगर उनके इसरार के आगे मैं इनकार भी ना कर सकी। आखिरकार मैंने अलमारी से ये गहरे सबसे रंग का सूट निकाला और पहन लिया। वो बहुत कीमती था, खूबसूरत भी, मगर मुझे अपने ऊपर बोझ लग रहा था, जैसे मैं किसी और की जिंदगी ओढ़ रही हूँ। बीजान ने मुस्कुराकर मेरी तारीफ की, मगर मैं सिर्फ नजरें झुकाए बैठी रही। शाम को वो घर आया, हमेशा की तरह सीधा अपने बेटे की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। ये सूट तुमने क्यों पहना है? इसकी आवाज में सख्ती थी। ये शानजे का है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे पहनने की? मैं साकित रह गई, अल्फाज जैसे गुम हो गए थे। उसने मुझे मजीद जलील करते हुए कहा, अपनी औकात मत भूलो, तुम कभी भी उसकी जगह नहीं ले सकती। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, कभी भी नहीं। उसके हर लफ्ज ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर आंखों से आंसू बह निकले। मैं वहां एक लम्हा भी ना रुक सकी और भागती हुई अम्मी के पास चली गई। उनके सामने जाकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी। अम्मी, हम यहाँ से चले जाते हैं, मैं अब मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा दिल भर चुका था, जिस्म पहले ही कमजोर था और अब ये सब। मैं जैसे टूट गई थी। बीजान ने यह सब देख लिया था। वो गुस्से में इसके पास गई और साफ अल्फाज में कह दिया, मैंने कहा था उसे वो कपड़े पहनने को, तुमने कभी उसके लिए कुछ किया भी है? वो तुम्हारे बच्चे को पाल रही है, अपनी नींद अपनी सेहत सब कुर्बान कर रही है और तुम उसे जलील कर रहे हो। घर का माहौल बोझल हो गया था। हरीश भी रोने लगा था, जैसे वो सब कुछ महसूस कर रहा हो। काफी देर तक उसका रोना बंद ना हुआ तो आखिरकार वो मजबूर होकर हमारे कमरे की तरफ आया। मैं बिस्तर पर पड़ी थी, बुखार से मेरा जिस्म जल रहा था, आंखें सूजी हुई थी। वो अंदर आया और सख्त लहजे में बोला, ये क्या ड्रामा है, आओ और इसे संभालो। मैंने आहिस्ता से आंखें खोली, मगर इस बार मैं फौरन नहीं उठी। मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। मैंने कमजोर आवाज में कहा, मैं ड्रामा नहीं कर रही, बस थक गई हूँ। वो पहली बार खामोश हो गया। शायद उसे अंदाजा हुआ कि मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, एक इंसान भी हूँ जिसके दिल में दर्द है। और उस लम्हे मुझे लगा, कभी कभी खामोशी से बर्दाश्त करते रहना नहीं, बल्कि एक बार रुककर खुद को सुनना भी जरूरी होता है। मैं उस वक्त नींद बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी, जब अचानक हरीश की हल्की सी आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैं घबरा कर उठ बैठी। अम्मी कहीं नजर नहीं आ रही थी और मेरी पहली नजर अपनी चादर को तलाश करने लगी। ना जाने क्यों उसके बगैर मुझे अपने आप पर एक अजीब सा खौफ महसूस होता था। हरीश मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर मुस्कुरा रहा था, फिर बेचैनी से मेरी कमीज को खींचने लगा। वो भूखा था। मैं एक लम्हे के लिए साकित रह गई। बिलाज भी वही मौजूद था और मेरे लिए उसके सामने खुद को इस तरह जाहिर करना बहुत मुश्किल था। मैंने हरीश को बहलाने की कोशिश की, चलो इधर चलते हैं, वहां दूध पी लेना,
میں نے اسے گود میں اٹھایا اور لڑکھڑاتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ میرے قدم ابھی سنبھلے بھی نہ تھے کہ دل میں ایک عجیب سا احساس ابھرا۔ میں نے تو خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب اس کمرے میں واپس نہیں جاؤں گی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ بس یہاں رہ کر اپنے حصے کا فرض نبھاؤں گی اور خاموشی سے زندگی گزار لوں گی، مگر آج صرف ایک بار اس کے بلانے پر میں پھر اسی جگہ کھڑی تھی۔ میں نے وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے، مگر ان پر کالی چادر لپٹ لی تھی، جیسے اپنے وجود کو پھر سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ دل میں بے جان کی باتیں بھی گونج رہی تھی اور شاید ان کا اثر بھی کہیں نہ کہیں باقی تھا۔ بلاج خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں پہلی بار کچھ مختلف تھا، شاید حیرت، شاید احساس۔ وہ کئی راتوں سے مجھے جاگتے دیکھتا آیا تھا، جب میں عریش کو سنبھالتی رہتی، خود کو بھول کر صرف اس کی ضرورتوں میں چپتی رہتی۔ میری آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے، جسم کمزور ہو چکا تھا، مگر میں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ شاید اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ میں صرف ایک ذمہ داری نہیں، ایک انسان ہوں، ایک ایسی لڑکی جس کی عمر بھی زیادہ نہیں، جو خود بھی سہارا چاہتی ہے مگر دوسروں کا سہارا بنی ہوئی ہے۔ میں نے عریش کو سینے سے لگایا اور نظریں جھکا لی۔ اس لمحے کمرے میں کوئی آواز نہیں تھی، بس ہماری خاموشیاں ایک دوسرے سے بات کر رہی تھی، اور مجھے لگا کبھی کبھی انسان کو سمجھانے کے لیے الفاظ نہیں، بس اس کی خاموشی قربانیاں ہی کافی ہوتی ہیں۔ میں اس رات ہمیشہ کی طرح زمین پر اپنا بستر بچھا کر لیٹ گئی تھی، مگر نیند آنکھوں سے کون سو دور تھی۔ کمرے کی خاموشی میں اچانک اس کی آواز گونجی، ادھر آؤ، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکا، مگر میں خاموشی سے اٹھ کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی، سر جھکائے جیسے کوئی قصوروار ہو۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، سچ سچ بتاؤ، تمہارے شوہر نے تمہیں اتنی جلدی کیوں چھوڑ دیا؟ اور کیا اس نے کبھی اپنے بچے کے بارے میں بھی نہیں پوچھا؟ یہ سوال سنتے ہی میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں آہستہ سے ایک طرف بیٹھ گئی، دل کے اندر جیسے طوفان برپا تھا، کیونکہ یہ وہ سچ تھا جسے میں ہمیشہ چھپاتی آئی تھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور دھیمی آواز میں کہا، وہ میرا شوہر تھا ہی نہیں۔ وہ چونک کر سیدھا ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اگر شوہر نہیں تھا تو پھر بچہ؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں ٹوٹتی ہوئی آواز میں بولی، وہ بچہ میری کسی غلطی کا نتیجہ نہیں تھا، کسی اور کے گناہ کا بوجھ تھا جو مجھ پر ڈال دیا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا اور میں اپنے اندر کا سارا درد باہر نکالتی چلی گئی۔ میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ میں اپنی ایک سہیلی کے گھر گئی تھی، اس کے کزن کی شادی تھی، سب خوش تھے، میں بھی بے فکر تھی، مگر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ کسی نے میری عزت چھین لی، میں اس کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکی، بس ایک اندھیرا تھا، یہ خوف، اور پھر میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، ڈر اور شرم نے مجھے خاموش کر دیا، مگر جب حقیقت سامنے آئی تو سب نے مجھے ہی قصوروار ٹھہرا دیا۔ مجھے گھر سے نکال دیا گیا اور میری پہچان ایک داغ بن کر رہ گئی۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ میں رو رہی تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ دل ہلکا محسوس ہو رہا تھا، جیسے برسوں کا بوجھ اتر رہا ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر بھی میری زندگی مجھے یہ سزا کیوں دے رہی ہے؟ اس لمحے مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ سچ کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو، انسان کو اندر سے آزاد ضرور کر دیتا ہے۔ اس وقت اپنی زندگی کی ایک بالکل مختلف موڑ پر تھی۔ میں شہر کے ایک ہاسٹل میں رہ کر پڑھائی کر رہی تھی، کیونکہ میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا، جہاں میں صرف کبھی کبھار ہی جایا پاتی تھی۔ امی ایک بڑی حویلی میں ملازمہ تھی اور انہی لوگوں کے احسان کی وجہ سے میری تعلیم جاری تھی۔ میرا خواب تھا کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بنوں، اپنی ماں کے سارے خواب پورے کروں، وہ خواب جو وہ خود کبھی پورے نہ کر سکی۔ جب کالج میں ایک ہفتے کی چھٹیاں ہوئی تو میری روم میٹ فائزہ میرے پیچھے پڑ گئی کہ میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلوں۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، یہاں اکیلی کیا کرو گی، میرے ساتھ چلو، میرے کزن کی شادی ہے، بہت مزہ آئے گا۔ میں پہلے تو ہچکچا رہی تھی، کیونکہ میں ایسی تقریبات کی عادی نہیں تھی، مگر اس کے بار بار کہنے پر میں نے سوچا کہ امی سے اجازت لے لوں۔ فائزہ نے خود ہی امی کو فون کیا
और बड़ी खुशी से उन्हें कायल कर लिया। अम्मी ने भी हिचकिचाते हुए इजाजत दे दी। शायद वो चाहती थी कि मैं भी थोड़ी खुशी देख लूं। मैंने दिल में हिम्मत की और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। जब हम वहां पहुंचे तो मैं एकदम घबरा गई। वो एक बहुत बड़ा और खूबसूरत घर था, जहां एक ही जगह पर कई खानदान इकट्ठा रहते थे। हर तरफ रौनक थी, हंसी मजाक, खैर खफे, लड़के लड़कियां सब आजाद खुल मिल रहे थे। ये सब मेरे लिए नया था, क्योंकि मैं एक सादा और महदूद माहौल से आई थी। मैं एक कोने में खामोश खड़ी ये सब देख रही थी। दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे मैं इस माहौल का हिस्सा नहीं हूँ। फैजा तो सबके साथ हंस रही थी, मगर मैं खुद को इस भीड़ में तन्हा महसूस कर रही थी। शायद मुझे अंदाजा नहीं था कि यही सफर मेरी जिंदगी का रुख बदलने वाला है। और कभी कभी इंसान खुशी ढूंढने निकलता है, मगर किस्मत उसे किसी और ही इम्तिहान में डाल देती है। मैं उस रात मेहंदी की तकरीब में एक कोने में बैठी थी। फरियाल का दिया हुआ सादा सा सूट पहना हुआ था। दुपट्टा संभाले मैं खुद को सबसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। इर्द गिर्द हंसी, शोर और खुशियों का समा था, मगर मुझे इस भीड़ में अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। मैं उन सब लोगों के बीच खुद को अजनबी महसूस कर रही थी, जैसे मेरा यहाँ कोई ताल्लुक ही ना हो। इतने में एक छोटा बच्चा मेरे पास आया और बोला, फरियाल बाजी आपको बुला रही हैं, आइए मैं ले चलता हूँ। मैं हैरान हुई, मगर ये सोचकर शायद कोई जरूरी बात हो, उसके साथ चल पड़ी। जैसे ही मैं उस कमरे में दाखिल हुई, मेरे कदम रुक गए। वो कोई सजा हुआ कमरा नहीं, बल्कि एक सुनसान सा स्टोर रूम था, जहां पुराना सामान पड़ा था, आधी रोशनी और आधा अंधेरा। दिल में एक अनजाना सा खौफ उभरने लगा। मैं अभी पलटने ही वाली थी कि अचानक किसी ने पीछे से आकर मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। एक तेज खुशबू वाला रुमाल मेरी सांसों में भर गया। मैं चीखना चाहती थी, मगर आवाज जैसे कहीं गुम हो गई। चंद लम्हों में ही सब कुछ धुंधला गया और फिर अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तो मैं जमीन पर पड़ी थी और सब कुछ खत्म हो चुका था। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर जिस्म कांप रहा था। बाल बिखरे हुए, कपड़े बेतरतीब और दिल टूटकर बिखर चुका था। मैं समझ गई थी कि मेरे साथ क्या हो चुका है, मगर ये नहीं जानती थी कि वो कौन था जिसने मेरी जिंदगी उजाड़ दी। मैं बहुत देर तक वहीं बैठी रोती रही, फिर हिम्मत करके अपने कपड़े संभाले, दुपट्टा उठाया जो मिट्टी में लिपट था, और लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकली। बाहर सन्नाटा था, शायद सुबह के 5 या 6 बज रहे थे। सब लोग सो रहे थे, किसी को खबर भी ना थी कि एक लड़की की दुनिया अभी भी बर्बाद हुई है। मैं उस कमरे में गई जहां सब सो रहे थे। फरियाल भी बेखबर सो रही थी। मैंने उसे देखा, मगर कुछ कह ना सकी। मेरे अंदर सिर्फ खौफ था, बदनामी का, बेयकीनी का। अगर मैं सच बताती तो शायद कोई यकीन ना करता। इतने लोगों में मैं कैसे साबित करती कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं चुपचाप वापस आ गई और उस रात मैंने फैसला कर लिया कि मैं ये दर्द अपने अंदर ही दफन कर दूंगी। मैं देर तक रोती रही और उस दिन मुझे समझ आ गया था कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो नजर नहीं आते, मगर इंसान को अंदर से हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। मैं उस रात के बाद वही नहीं रही थी। जिस्म तो शायद संभल गया, मगर रूह कहीं पीछे रह गई थी। मैंने फैसला किया कि ये राज अपने अंदर ही दफन रखूंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि इस माशरे में सवाल मुझसे ही किए जाएंगे। अगले दिन मैं खामोशी से वापस हॉस्पिटल आ गई और कुछ दिनों बाद गाँव चली गई। अम्मी ने मेरे चेहरे की उदासी पढ़ ली थी, मगर मैंने कुछ न बताया, सिर्फ ये कहा कि तबीयत ठीक नहीं। वक्त गुजरता गया, मगर मेरे अंदर का खौफ खत्म ना हुआ। फिर एक दिन हकीकत मेरे सामने खड़ी थी। मैं माँ बनने वाली थी। उस लम्हे जमीन जैसे मेरे पांव तले से निकल गई। मैंने बहुत सोचा, बहुत रोई, हत्ता कि एक लम्हा ऐसा भी आया जब मैंने अपनी जिंदगी खत्म करने का इरादा कर लिया। मगर फिर अम्मी का चेहरा सामने आ गया, उनकी मेहनत, उनके ख्वाब, और मैं रुक गई। मैंने हिम्मत की और सब कुछ अम्मी को बता दिया। वो टूट गई, मगर उन्होंने मुझे टूटने नहीं दिया। उन्होंने मेरा हाथ थाम कर रखा। बेटी, जो तेरे साथ हुआ वो तेरा कसूर नहीं, ये एक आजमाइश है और हम इसे जीतेंगे। उनके ये अल्फाज मेरे लिए सहारा बन गए। हमने वो गांव छोड़ दिया और एक नए शहर में आकर बस गए। मैंने एक नन्ही सी जान को जन्म दिया, मगर किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था।
وہ بچہ زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکا۔ میں ایک بار پھر خالی ہو گئی، مگر اس بار میں پہلے جیسی کمزور نہیں تھی۔ پھر وہ دن آیا جب میں نے ایک اور بچے کو اپنی گود میں لے لیا۔ عریش، وہ میرا نہیں تھا، مگر اس کی ہر سانس میں مجھے اپنی زندگی کا مقصد نظر آنے لگا۔ میں نے اسے اپنے دل سے اپنایا، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی دعوے کے۔ وقت کے ساتھ بہت کچھ بدلا۔ بلاج کی نظروں میں بھی آہستہ آہستہ سختی کی جگہ نرمی آنے لگی۔ ایک دن اس نے پہلی بار مجھ سے معافی مانگی۔ اس دن میں نے محسوس کیا کہ شاید میرے صبر نے اس کے دل تک راستہ بنا لیا ہے۔ میں نے اپنی تعلیم بھی دوبارہ شروع کی اور آہستہ آہستہ اپنی پہچان خود بنانے لگی۔ اب میں صرف ایک مظلوم لڑکی نہیں تھی، میں ایک مضبوط عورت تھی جو اپنے زخموں کے ساتھ جینا سیکھ چکی تھی۔ آج جب میں اپنی زندگی کو دیکھتی ہوں تو سمجھ آتا ہے، ہر اندھیری رات کے بعد ایک نئی صبح ضرور آتی ہے، اور جو لوگ ٹوٹ کر بھی جینا سیکھ لیتے ہیں وہی اصل میں جیت جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈز۔ ملتے ہیں اگلی نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔